हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर ऑफ पीरियोडिक टेस्ट सेकंड सेशन 2022 टू 23। सबसे पहले है सेक्शन ए रीडिंग। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो पावर फूड्स आर फूड्स दैट प्रोवाइड रिच लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स like fiber, potassium and minerals. With people becoming increasingly health conscious today, many fitness trainers encourage their clients to include these foods in their daily diet to increase muscle development. There are various ways of incorporating power foods in your daily diet. Of course, the key to enjoying power foods is proper preparation of these foods, the use of seasoned fresh foods, and identifying your choice of flavor among power foods. Some of the recommended power food combination are those that are prepared in our kitchens on a regular basis. Take for instance the combination of chickpeas and onions. This combination is a powerful source of iron which is required by the body to transport oxygen to its various parts. Iron deficiency can lead to anemia, fatigue, brain fog, and tiredness. A study by the Journal of Agricultural and Food Chemistry says that sulfur compounds in onion and garlic help in the absorption of iron and zinc from chickpeas. The combination is a hit with teenagers who need to be diligent about getting iron in their diet. A quick way to prepare this power food is to make a chickpea salad with chopped onions, chaat masala and cilantro. Now another favorite combination with power food takers is yogurt and bananas. This makes for a perfect snack after a rough game of football. Exercising bumps glucose and thus lower blood sugar. Yogurt is packed with proteins that help preserve muscle mass, and bananas are packed with carbohydrates that help in refueling energy and preventing muscle soreness. A quick and easy recipe with bananas is banana smoothie topped with cool yogurt. Among beverages, green tea is the best source of catechins that are effective in halting oxidative damage to cells. According to research at Purdue University, adding a dash of lemon juice to green tea makes the catechins even more easily absorbable by the body. So the next time you serve your friends green tea with mint and lemon juice. Okay. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द पार्टेकिंग ऑफ पावर फूड्स। पावर फूड्स को खाने का क्या रूल्स है इसके रिगार्डिंग। सो रूल्स यही है, यूज ऑफ सीजन फ्रेश फूड्स एंड आइडेंटिफाई करना कि आपका चॉइस ऑफ फ्लेवर क्या है अमंग पावर फूड्स। नेक्स्ट इज सजेस्ट अ क्विक रेसिपी विद चिकपीस एंड अनियंस। सो क्विक रेसिपी है टू मेक अ चिकपी सैलेड विद चॉप्ड अनियंस, चाट मसाला एंड सिलेंट्रो। नेक्स्ट, व्हाई इज योगर्ट एंड बनानास एंड एनरिचिंग पावर फूड। So yogurt is packed with proteins that help preserve muscle mass और bananas are packed with carbohydrates जो help करता है refuel करने में energy and preventing muscle soreness. Next is, what is the key to enjoying power foods in a wholesome way? So the key to enjoying power foods is proper preparation of these foods, use of seasoned fresh foods and आइडेंटिफाइंग योर चॉइस ऑफ फ्लेवर अमंग पावर फूड्स। ओके, ये 5 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट एक और पैराग्राफ है, ये भी अनसीन ही होगा, इसको आप एक बार देख लीजिए। ये कंपैरेटिवली इजियर भी है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस भी आपको गिवन है। चलिए सेक्शन बी पर आते हैं, राइटिंग एंड ग्रामर। यू आर राकेश और सोनिया ऑफ कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ ओरिएंट ब्लैक सन नोएडा प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स आपको ऑर्डर करनी है, तो उसके लिए सेल्स मैनेजर को एक लेटर लिखना है। सो ये है ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, आपका एड्रेस कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोएडा। देन आफ्टर लीविंग अ लाइन डेट जब आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस द सेल्स मैनेजर ऑफ ओरिएंट ब्लैक सन नोएडा। उसके बाद सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर बुक्स, देन सैल्यूटेशन सर और मैडम। फिर लेटर लिखना आप स्टार्ट करेंगे।
आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स फॉर आर स्कूल लाइब्रेरी। मैं इन बुक्स के लिए ऑर्डर करना चाहता हूँ अपने स्कूल लाइब्रेरी के लिए। बुक्स के नाम लिखेंगे, ऑथर कौन है और कितनी कॉपीज़, कितनी बुक्स आपको चाहिए। सो 5 to 6 बुक्स लिख देंगे आप। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, क्राइम एंड पनिशमेंट, द इनविजिबल मैन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एलिस इन वंडरलैंड एंड एनिमल फार्म। काइंडली सप्लाई द बुक्स बाय नेक्स्ट वीक। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट बुक्स आर इन गुड कंडीशन एंड अराइव अनडैमेज्ड। आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड द बिल अलॉन्ग विद द बुक्स। बुक्स के साथ बिल भी सेंड कर दे। आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट परमिसेबल टू स्कूल्स, उस डिस्काउंट के साथ जो कि स्कूल्स को दिया जाता है। पेमेंट विल बी मेड सून आफ्टर रिसीट एंड चेकिंग ऑफ द बुक्स। डैमेज्ड बुक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड नॉर एनी पेमेंट विल बी मेड फॉर द सेम। ये जनरल पॉइंट्स है, सभी ऑर्डर लेटर्स में हम लिखते ही हैं। वी सीक योर कॉपरेशन इन दिस रिगार्ड, थैंक यू, एंड देन योर्स फेथफुली, आपका नाम जो क्वेश्चन में गिवन है। Now next question is, the following passage has not been edited. There is an error in each line against which a blank is given. आपको इनकरेक्ट वर्ड क्या है वो लिखना है, करेक्ट करके उसको लिखना है जो ब्लैंक्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें। जैसे कि सचिन तेंदुलकर इज अ बेस्ट, तो अ नहीं होना चाहिए, द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। देन ही प्ले फॉर मोर दैन 10 years फॉर अ कंट्री, ही टेक रिटायरमेंट, ओके। ही प्लेड फॉर more than 10 years for the country. He took retirement from the game this year. He is known for his skill in batting and fielding. Next, बस इतना ही था ये राइटिंग एंड ग्रामर। अभी है सेक्शन सी लिटरेचर, आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। सो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपकी बुक से किसी पोएम का एक एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है, इसको रीड करना है एंड देन क्वेश्चंस को आंसर करना है। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there, it is in the water, no use to say oh there are other balls। क्वेश्चन है what has happened to the boy, बॉय के साथ क्या हुआ। बॉय बहुत सैड है क्योंकि उसकी बॉल खो गई है। सो द बॉय was very sad as he had lost his ball। Next is why does the poet say no use to say oh there are other balls। पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि बच्चे को ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि और भी दूसरी बॉल्स हैं, क्योंकि उसको वही बॉल चाहिए, बहुत सारी मेमोरीज उसके साथ एसोसिएटेड है। सो बिकॉज ही wanted to have that ball only as many memories were associated with that। Next is which word means happily। किस वर्ड का मतलब happily है, merrily। नेक्स्ट इज वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ पर चली गई है, पानी में। सो द बॉल वेंट टू द वाटर। चलिए नेक्स्ट, अभी फिर से रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फिर से एक बुक का पैराग्राफ आपको गिवन है, रीड करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Of finally stayed where I was brooding. Yes, the paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as diary, ये एनी फ्रैंक वाले चैप्टर से है, unless I should ever find a real friend, it probably wouldn't make a bit of difference। क्वेश्चन है how has paper more patience than people। पेपर में ज़्यादा पेशेंस क्यों है लोगों से, क्योंकि एक तो कोई भी बात अगर आपको कहनी है, कोई भी आप अपना थॉट शेयर उसके साथ कर सकते हैं, देन वो सीक्रेट्स आपके सीक्रेट ही रखते हैं एंड कभी भी डिसइंटरेस्ट शो नहीं करते। सो पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल एज दे कीप आर secrets we can share
anything with them anytime and they never show disinterest. नेक्स्ट इज वॉट डिड शी डू वेन शी वॉज डिप्रेस्ड. क्या करती थी एनी फ्रैंक जब वो डिप्रेस्ड होती थी? शी यूज टू राइट इन हर डायरी. नेक्स्ट इज वाई डज शी वॉन्ट अदर्स नॉट टू रीड वॉट शी राइट्स. वो क्यों नहीं चाहती थी कि कोई भी दूसरा पढ़े कि उसने डायरी में क्या लिखा है? क्योंकि उसको लगता था कोई ट्रू फ्रेंड उसका नहीं है और कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो करेगा एक 13 साल की लड़की की डायरी में. सो बिकॉज शी हैड नो ट्रू फ्रेंड. इतना ही रखते हैं क्योंकि पैराग्राफ में यही गिवन है रीजन. नो ट्रू फ्रेंड. नेक्स्ट इज डज शी हैव अ रियल फ्रेंड नाउ. क्या अभी उसका रियल फ्रेंड है? यस, उसकी डायरी उसकी फ्रेंड है. चलिए आगे आते हैं. अभी आंसर करना है आपको 30 to 40 वर्ड्स में. डू यू सिंपैथाइज विद द सीगल? वाई. क्या सीगल से सिंपैथी आपको है तो क्यों है? सो यस, वी सिंपैथाइज विद द सीगल. ही इज अ वेरी यंग बर्ड. ही हैज नॉट येट लर्न हाउ टू फ्लाई. हिज पेरेंट्स वांट दैट ही शुड फ्लाई. दे एनकरेज हिम बट ही इज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग. हिज पेरेंट्स स्टार्व हिम फॉर 24 hours. इन द एंड हाउएवर द सीगल लर्न्स हाउ टू फ्लाई. बहुत छोटा था सीगल. उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो उड़ना सीखे लेकिन उसे बहुत डर लगता था गिरने से, तो उन्होंने 24 आवर्स तक उसको खाना भी नहीं दिया और बाद में वो उड़ना सीख गया. नेक्स्ट इज डिफाइन द वैल्यूज दैट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द पायलट ऑफ ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन. ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन के जो पायलट थे उनके एक्शन से कौन सी वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती है? व्हेन ही वांटेड टू थैंक द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन. जब वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू बोलना चाहता था. सो द पायलट जो राइटर भी है स्टोरी के ऑफ द ओल्ड डेकोटा वॉज कॉट इन द स्टॉर्म. ही लॉस्ट हिज कॉन्टैक्ट विद द कंट्रोल रूम. इन दिस ट्रबलिंग सिचुएशन हिज फ्यूल टैंक वॉज ऑल्सो एम्प्टी. He lost all his hopes, but suddenly a black strange plane appeared. The pilot of the black plane asked the writer to follow him. The writer landed safely. फ्यूल उसका खत्म हो गया था, जो कंट्रोल रूम था वहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं रहा था, तो एकदम से एक ब्लैक स्ट्रेंज प्लेन आता है जो उसकी हेल्प करता है और वो सेफली लैंड हो जाता है. आफ्टर हिज सेफ लैंडिंग ही वांटेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन. दिस शोज हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन. ही वॉज थैंकफुल टू हिम फॉर सेविंग हिज लाइफ. It shows that the pilot of Dakota has a value of gratefulness in his character. Okay, next. Do you consider Amanda's mother to be a nagging mother? क्या आपको लगता है कि अमांडा की मदर बहुत ज़्यादा नैग करती थी, एक nagging mother थी? So Amanda's mother is indeed a nagging mother. वो बिल्कुल एक nagging mother थी. She is all about instructions and finding faults. वो हमेशा गलतियाँ ढूंढती रहती थी, instructions देती रहती थी क्या करना है. No doubt it is her responsibility to instill good values into her daughter. वो उनकी जिम्मेदारी थी कि अच्छी वैल्यूज वो अमांडा को दे, but not at the cost of her child's happiness. One should know how to strike a balance between maintaining responsibilities and taking good care. दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए. Next, what impression do you have form of Ozible as a secret agent after reading the story The Midnight Visitor? क्या इंप्रेशन है आपका ऑजिबल के बारे में ये स्टोरी पढ़ने के बाद? सो ऑजिबल वॉज अ डिटर्मिन्ड सीक्रेट एजेंट. ही वॉज डेडिकेटेड टू हिज वर्क. बहुत डेडिकेटेड था. ही वॉज एजाइल इन एक्शन इवन दो ही वॉज अ स्लोपी फैट मैन. ही वॉज सेन एंड श्रूड. बीइंग काम एंड कूल हेडेड बाय नेचर, ही डिड नॉट लूज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन ही फाउंड मैक्स इन हिज रूम विद अ रिवॉल्वर. आधी रात में जब मैक्स को उसने देखा रिवॉल्वर के साथ तो भी उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड को लूज नहीं किया. इट वॉज मिडनाइट. ही कुक्ड अप अ फॉल्स स्टोरी. जल्दी से उसने एक झूठी कहानी बना दी ऑफ अ बालकनी एग्जिस्टिंग अंडर द विंडो. विंडो के नीचे एक बालकनी है. जस्ट टू बी फूल द इंट्रूडर. इंट्रूडर को बेवकूफ बनाने के लिए. हॉरिस डैनबी वॉज क्लेवर बट द यंग वुमेन वॉज क्लेवरर. हॉरिस डैनबी क्लेवर था लेकिन यंग वुमेन उससे भी ज्यादा क्लेवर थी. डिस्कस करिए कैसे. सो हॉरिस डैनबी वॉज अ क्लेवर थीफ. He lived a life of a respectable and successful businessman. He used to make locks. ताले वो बनाया करता था. He was fond of rare and expensive books. He did not have enough money to buy these books. He used to rob a safe for this once in an year. साल में एक बार चोरी करता था ये बुक्स खरीदने के लिए. He was very clever. He made his plan in such a way that he was never caught.
कभी भी वो पकड़ा नहीं गया था. He spent a lot of time in planning his mission. He never left any sign of theft. But the lady who was another thief proved herself cleverer than Danby. लेकिन जो लेडी थी वो भी एक चोर थी. उसने प्रूव किया कि वो डैनबी से भी ज़्यादा क्लेवर थी. She was a great actress as well. अच्छी एक्ट्रेस भी थी. She pretended to be the owner of the house. उसने प्रिटेंड किया कि वो उस घर की ओनर है. She tricked Danby who opened the safe for her and handed over the jewels. Horace was so nervous that he did not realize that he had no gloves in his hand. The lady had no tools, no gloves, but managed to rob the safe without leaving any evidence against her. Thus, we can say that the lady was cleverer than Danby. Next is Griffin misused his invention instead of using it for the betterment of society. Do you think moral values are important along with intellectual abilities? Discuss. So yes, moral values are as important as intellectual abilities. Griffin was a scientist who had made a discovery due to which he could be invisible. But he was rather a lawless scientist who misused a scientific discovery for his petty selfish gains. जैसे कि he set his landlord's house on fire. आग उसमें लगा दी when he asked him to vacate it. जब उन्होंने उसे खाली करने के लिए बोला. He entered the store invisible, stole clothes and food. At another shop, he attacked the shopkeeper from behind and ran away after robbing his money. At Iping, he stole the clergyman's money from his desk and hit Mrs. Hall by throwing a chair on her. He knocked down police constable Mr. Jaffers. In this way, Griffin misused his scientific discovery without making any benefit to the mankind. Okay, next is answer the following in 100 to 120 words. Our sins never got unpunished. जो sin पाप हम करते हैं कभी भी unpunished नहीं जाते. Horace Danby ultimately had to go to prison. उसे फाइनली प्रिजन में जेल में जाना पड़ा. ये शो करता है इन स्पाइट ऑफ प्लानिंग अ क्राइम इंटेलिजेंटली. कितना भी इंटेलिजेंटली और केयरफुली आप किसी क्राइम को प्लान कर ले, अ क्रिमिनल कांट एस्केप द लॉ. एक्सप्लेन करिए कैसे. सो अ पाथ ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी इज ऑलवेज बेटर दैन एन ईजी पाथ ऑफ डिसीट. Horace Danby was a thief. He robbed safe every year, but in the end he was befooled by another thief and was arrested by the police. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो इंस्टेंस हमने शेयर किया था वो आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है कि कैसे लेडी ने अपने आप को ओनर बताया हाउस का और जो हॉरेस डैनबी था उसने ग्लव्स भी नहीं पहने, ऐसे ही सेफ को ओपन किया और सारे जूल्स उसको दे दिए सेफ से निकालकर. स्टीलिंग और लाइंग कैन नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस और सक्सेस. अ ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज लीड्स अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ. He does not have to live with any kind of guilt. Stealing or lying robs one of peace. Those who are honest do not live a life of tension and are able to get peace of mind too. Next, इसके और में क्वेश्चन है, should the boy be allowed to grieve for his ball? बच्चे को क्या बॉल के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत है? If his loss is irreparable or irretrievable, then how should one handle it? अगर वो रिप्लेस ही नहीं हो सकती, बॉल दोबारा से वापस नहीं आ सकती, तो कैसे इस लॉस को हमें हैंडल करना चाहिए, क्या लेसन आप इससे सीखते हैं. सो येस, द बॉय शुड बी अलाउड टू ग्रीव फॉर हिज बॉल एज ही हैड दिस बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही हैड मेनी ओल्ड मेमोरीज एसोसिएटेड विद इट सिंस हिज चाइल्डहुड. बचपन से उसके पास थी बहुत सारी मेमोरीज उससे जुड़ी हुई थी. वन शुड हैव सेल्फ कॉन्सोलेशन एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू बेयर द लॉस. सेल्फ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग आर मोर इफेक्टिव एंड लास्टिंग वेज ऑफ हैंडलिंग लॉसेस. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था क्लास 10th इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.